Now we have angiotensin antagonist and a renin inhibitor. The two primary groups of angiotensin antagonists are the angiotensin converting enzyme inhibitors and the angiotensin 2 receptor blockers. पहले मैं आपको renin angiotensin system समझा देती हूँ कि उसमें क्या होता है normally, and then we will do the drugs. तो सबसे पहले when we have a low blood pressure, our kidney sense that and release renin. ठीक है, R से renin को denote कर रही हूँ. ठीक है, this renin when released in blood, there is a substance in our blood, angiotensinogen. It converts that angiotensinogen to angiotensin 1. ठीक है, when this angiotensin 1 within the blood goes to lungs, there is an enzyme in the lungs which is known as ACE, angiotensin converting enzyme, and that enzyme converts it into angiotensin 2. Now this angiotensin 2 is a vasoconstrictor and this angiotensin 2 also releases aldosterone. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम लोग ACE inhibitors देते हैं. ACE inhibitors क्या करती हैं, इस स्टेप को ब्लॉक कर देंगी. So ACE inhibitors are used which include many drugs, अभी हम पढ़ेंगे आगे, and angiotensin 2 receptor blocker. सेकेंडली हम इसके रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं ताकि ये एक्ट ही ना कर सके, तो वो भी यूज़ करते हैं. ठीक है, सो दीज टू आर एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट. उसके बाद रेनिन इनहिबिटर, एक और ड्रग दे सकते हैं जो रेनिन इनहिबिटर है, जो रेनिन की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देंगे या रेनिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे. सो जो है ये हमारे पास साइकिल रुक जाएगा. ठीक है, और हाइपरटेंशन कम हो जाएगी बाय डिक्रीजिंग वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन और बाय डिक्रीजिंग सोडियम एंड वाटर डीअब्जॉर्प्शन बाय दिस एल्डोस्टेरॉन. सो पढ़ते हैं अब इसको, इसमें क्या हो रहा है. ACE inhibitors like captopril, which inhibit the enzyme variously known as angiotensin converting enzyme, kinase 2 and the peptidyl dipeptidase, ये इसके अलग अलग नाम हैं, cause a reduction in blood levels of angiotensin 2 and aldosterone and an increase in endogenous vasodilators of the kinin family. Additional इनका effect ये है कि ये vasodilator की concentration को भी increase करते हैं. ACE inhibitors have a low incidence of serious adverse effects except in pregnancy. They are contraindicated in pregnancy, और इनके normally adverse effects लेकिन कम होते हैं. They produce minimal compensatory responses as well. The ACE inhibitors are useful in heart failure and diabetes as well as hypertension. So ये uses पूछे जा सकते हैं. तो हम इन 3 diseases में primarily इनको use करते हैं. Then we have the toxicities of ACE inhibitors include cough in 30% of patients, hyperkalemia, renal damage in occasional patients with pre-existing renal vascular disease. वैसे ये किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं, बट अगर किसी पेशेंट में रीनल वास्कुलर डिजीज़ है तो उसमें ये एग्जैशर्बेट कर सकते हैं सिम्टम्स को. अदरवाइज़ इनकी टॉक्सिसिटीज़ में कफ आती है और हाइपरकैलेमिया आता है. तो ऐसे पेशेंट्स जिनको एस्थमा है, ठीक है, और क्रोनिक कफ रहती है किसी और कंडीशन की वजह से, उनमें डोज एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है और कोई अल्टरनेटिव ड्रग यूज़ करें तो बेहतर है, वरना कफ होती रहती है. और हाइपरकैलेमिक्स में भी इंपॉर्टेंट है. अच्छा, दे कॉज मेजर रीनल डैमेज इन द फीटस एंड आर एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी. अभी तक हमने जितनी ड्रग्स पढ़ी हैं उनमें से सिर्फ ये फर्स्ट है जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी के अंदर. इट कॉन्ट्रास्ट दे हैव बेनिफिशियल इफेक्ट्स इन क्रोनिक हार्ट फेलियर एंड डायबिटिक रीनल डिजीज़. द सेकेंड ग्रुप ऑफ एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट, द रिसेप्टर ब्लॉकर्स, उसमें हमारे पास लोसार्टन, वेलसार्टन, कैंडीसार्टन आती है. ठीक है, इरबीसार्टन एंड अदर ARBs विच competitively inhibit angiotensin 2 at its AT1 receptor site. उसके रिसेप्टर को इनहिबिट कर देंगे. ARBs appear to be as effective in lowering blood pressure as the ACE inhibitors and have the advantage of a lower incidence of cough. ठीक है, इन दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दोनों का इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन ACE इनहिबिटर चूँकि कफ कॉज करते हैं, ARBs वो नहीं कर रहे होते, तो हम ARB को प्रेफर करते हैं. लेकिन ARBs हाइपरकैलेमिया कॉज करते हैं. ठीक है, they do so cause hyperkalemia. Like the ACE inhibitors, they cause fetal renal toxicity and are thus contraindicated in pregnancy. So they are also contraindicated in pregnancy because they cause fetal renal toxicity. ये भी important है. Then we have alisecrine. It is a renin inhibitor. ये renin को inhibit करेगा on its substrate angiotensinogen. ठीक है, उसको बाइंड नहीं होने देगा. Thus reduces the formation of angiotensin 1 and in consequence angiotensin 2. इसकी टॉक्सिसिटीज़ में हेडेक है, डायरिया है. It does not appear to cause cough, but it is not yet known whether it has the other toxicities of angiotensin antagonist. It does not show reproductive toxicity in animals but is considered to be contraindicated in pregnancy because of known toxicities of ACE inhibitors and ARBs. इन तीनों को चूँकि हम एंजियोटेंसिन एंटागनिस्ट की क्लास में लेते हैं तो रेनिन इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि बाकी दोनों ड्रग्स कर रही होती हैं, तो ये भी कर सकती है. अभी तक वैसे इसका कोई केस ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ है, बट हम इसको सेफ डिक्लेयर नहीं करते. दूसरी बात कि और कोई इसकी खास टॉक्सिसिटी नहीं है, डायरिया है और हेडेक है.
डिजीनेस है, ठीक है। एंजियोटेंसिन एंटागनिस्ट एंड रेनिन इनहिबिटर्स रिड्यूस एल्डोस्टेरोन लेवल्स एंड कॉज पोटाशियम रिटेंशन, ठीक है। जिस इस पोटाशियम रिटेंशन की वजह से तीनों में हाइपरकैलेमिया होता है। इफ़ द पेशेंट हैज़ रीनल इम्पेयरमेंट इट कंज्यूम अ हाई पोटाशियम डाइट और इज टेकिंग अदर ड्रग्स जो कि हाइपरकैलेमिक हैं, तो फिर पोटाशियम टॉक्सिसिटी हो सकती है। सो वी नीड टू गिव, अगर ऐसे पेशेंट में आपको कोई डायूरेटिक देनी है तो फिर आप ऐसी डायूरेटिक प्रेफर करेंगे जो पोटाशियम लॉस करा रही हो, ताकि एक एब्जॉर्ब करा रही है, एक लॉस करा रही है, तो देयर विल बी अ बैलेंस लेवल ऑफ पोटाशियम इन द ब्लड। सो ये डॉक्टर का काम होता है सोचना कि ये ड्रग अगर ऐसे करा रही है तो कौन सी ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री ड्रग दें जो इन दोनों के इफेक्ट्स को बैलेंस कर दें, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सारा ड्रग्स की क्लासेस कौन कौन सी हाइपरटेंशन में यूज़ होती हैं। एक छोटा सा टॉपिक रह गया है क्लिनिकल यूजेस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के किस तरह से आपने इनको यूज़ करना है। सो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। देयर इज़ अ टर्म स्टेप्ड केयर और पॉलीफार्मेसी। इसकी डेफिनेशन आ सकती है ऐसी कि उसके अंदर एग्जामिनर वाइवा में पूछ सकते हैं। सो यू मस्ट नो therapy of hypertension is complex because the disease is symptomless until far advanced and because the drugs may cause major compensatory responses and significant toxicities. We have discussed these. However, compensatory responses can usually be minimized and overall toxicity can often be reduced by the use of multiple drugs at lower dosages in patients with moderate or severe hypertension. आपने dosage adjustment करनी होती है. Typically, drugs are added to a patient's regimen in stepwise fashion. Each additional agent is chosen from a different subgroup until adequate blood pressure control has been achieved. ठीक है, आपने जब ड्रग्स चूज़ करनी है, आपने ऐसे ड्रग्स चूज़ करनी है स्टेप बाय स्टेप, और हर एक ड्रग डिफरेंट क्लास से चूज़ करनी है ताकि एक ही क्लास की टॉक्सिसिटीज़ एग्रीवेट ना हो जाए, और ऐसे चूज़ करनी है हर क्लास से अनटिल आपका जो एडिक्वेट ब्लड प्रेशर है वो अचीव हो जाए, ठीक है। द यूजुअल स्टेप्स इंक्लूड, सबसे पहले लाइफस्टाइल मेजर्स हैं जैसे सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन है और वेट रिडक्शन है, बिकॉज दे आर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। अगर ये आप नहीं कराएंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को इग्नोर कर देंगे, तो चाहे आप जितनी मर्जी मेडिकेशंस दे लें, ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ द लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। सो वी नीड टू डू दैट। उसके बाद हमारे पास सबसे पहली ड्रग ऑफ चॉइस होती है डायूरेटिक्स, और उसमें भी थायराइड डायूरेटिक्स, ठीक है। थर्ड पे हम चूज़ करते हैं एस इनहिबिटर्स या ARBs में से कोई ड्रग, ठीक है। और फोर्थ पे होती है वेज़ोडाइलेटर। ये ऑर्डर भी ऐसे ही याद रखना है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। और वेज़ोडाइलेटर में यूजुअली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होगा या सिम्पैथोप्लीजिक होगा जिसमें बीटा ब्लॉकर होंगे, या दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी द एबिलिटी ऑफ ड्रग्स इन स्टेप्स 2, 3 and 4 टू कंट्रोल द कंपनसेटरी रिस्पॉन्सेज इंड्यूस्ड बाय द अदर शुड बी नोटेड। और आपने इन 2, 3, 4 ड्रग जब दे रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि अगर एक कंपनसेटरी हाइपरटेंशन कॉज कर रही है तो दूसरी उस हाइपरटेंशन को कितना स्ट्रेस कर रही है, कहीं इतना स्ट्रेस तो नहीं कर रही कि हाइपोटेंशन ही हो जाए। सो ये भी नोट करना है। जैसे प्रोपेनोलोल रिड्यूसेस द टैकेकार्डिया इंड्यूस्ड बाय हाइड्रोलाजीन। सो एक दूसरे के इफेक्ट्स को कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ होना चाहिए, ज़्यादा एग्रीवेट नहीं करना। दस रैशनल पॉलीफार्मेसी मिनिमाइजेस टॉक्सिसिटीज़ while producing additive और supra additive therapeutic effects. So पॉलीफार्मेसी क्या है? इट मिनिमाइजेस टॉक्सिसिटीज़ वाइल प्रोड्यूसिंग एडिटिव और सुप्रा एडिटिव थेराप्यूटिक इफेक्ट्स। ये डेफिनेशन है, और इसके अंदर ये आप सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे। पॉलीफार्मेसी, पोली का मतलब होता है मेनी, फार्मेसी मतलब ड्रग्स, तो इसमें आप मल्टीपल ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं बट मिनिमाइजिंग टॉक्सिसिटीज़ एंड प्रोड्यूसिंग एडिटिव इफेक्ट्स, साइनर्जिस्टिक इफेक्ट्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है मोनोथेरेपी। It has been found in large clinical studies that many patients do well on a single drug. जैसे कुछ patients में एक drug भी enough होती है, diuretic दे दें, ACE inhibitor दे दें। This approach to the treatment of mild and moderate hypertension has become more popular than stepped care or polypharmacy because of its simplicity, better patient compliance, and with modern drugs relatively low incidence of toxicity. So आजकल monotherapy preferred है। Age and ethnicity, older patients of most races respond better to diuretics and beta blockers than to ACE inhibitors, और अफ्रीकन जो हैं वो respond better to diuretics and calcium channel blockers। तो अब जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ के पेशेंट्स आ रहे हैं तो you need to know the ethnicity, और उसके अकॉर्डिंग भी ड्रग एडजस्ट करनी पड़ सकती है, ठीक है। हाइपरटेंसिव एमरजेंसी क्या है? हाइपरटेंसिव एमरजेंसी फॉर्मली कॉल्ड मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन इज़ एन एक्सेलरेटेड फॉर्म ऑफ सीवियर हाइपरटेंशन, जिसमें इतनी हाइपरटेंशन हो गई है कि आपकी ब्लड वेसल्स, आपके जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होने लग गए हैं, एसोसिएटेड विद राइजिंग ब्लड प्रेशर एंड रैपिडली प्रोग्रेसिंग डैमेज टू वेसल्स एंड ऑर्गन्स। मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंसिव एमरजेंसी मस्ट बी कैरिड आउट ऑन एन अर्जेंट बेसिस इन द हॉस्पिटल, अदरवाइज स्ट्रोक, MI, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। पावरफुल वेजोडाइलेटर्स लाइक नाइट्रोप्रोसाइड, फिनोल्डोपाम और डाइजॉक्साइड कंबाइंड
कम्बाइंड विद डायूरेटिक्स, और मैंने बताया था कौन सा डायूरेटिक, फ्यूरोसामाइड, ये देने हैं ऑन एमरजेंसी बेसिस टू सेव द पेशेंट। एंड बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं टू लोअर ब्लड प्रेशर टू 140/60 से 90/110। अच्छा ये रेंज बताइए, 140 से 160 सिस्टोलिक और 90 से 110 मिलीमीटर मर्करी रेंज प्रॉम्प्टली, यानी इसका इससे हाई होगा ना, ऑब्वियसली एमरजेंसी है तो उसको इतनी रेंज पर वो ले आएंगी बीटा ब्लॉकर्स। विद इन अ फ्यू आवर्स फर्दर रिडक्शन इज देन परस्यूड मोर स्लोली, और इससे भी जब आपने बीपी को नॉर्मल की तरफ लेकर आना तो वो स्लोली आप लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी गोल होना चाहिए टुवर्ड्स हाइपरटेंसिव एमरजेंसी। फिर एक टर्म यूज़ होती है हाइपरटेंसिव अर्जेंसी एंड हाइपरटेंसिव एमरजेंसी, दोनों में फ़र्क ये है कि एमरजेंसी जब होती है उसमें ऑर्गन डैमेज हो रहा होता है, ठीक है, और जो अर्जेंसी होती है उसमें ब्लड प्रेशर हाई ज़रूर होता है बट अभी वो थोड़ा प्रायर स्टेज पे होता है, अभी ऑर्गन्स डैमेज नहीं होना शुरू हुए होते बट देयर इज़ अ रिस्क, हाई ब्लड प्रेशर होता है। सो वी आर डिस्कसिंग हाइपरटेंसिव एमरजेंसी। सो ये हमारे पास पूरा चैप्टर था हाइपरटेंशन का, दैट्स ऑल। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह।